Good morning, sir. Yes, good morning. So in the previous class, we are going through the binary subtraction using 1 and 2's complement. Okay, so uh, according to your syllabus, we will have to go through Boolean function minimization techniques. We have already seen that some problems related with the K-map, and there may be some don't care conditions regarding that. So let me show you that first. Okay, let me share the whiteboard. Are you able to see the whiteboard? Are you able to see the whiteboard? Yes, sir. Yes, sir. Am I audible properly now? Yes, yes, sir. Okay. So we have seen the problems related with the SOP. Okay, so I am giving today one more problem, which is the condition using don't care. Okay. So here is the problem, like okay. So here we will have a problem like y equals sigma m 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, and don't care. So what is mean by don't care? I will tell you. Don't care at 1, 3, and 5. Okay. So yesterday we have seen one problem, and this is the problem which we have today. So here I am just drawing the K map. So there the numbers are maximum, the biggest number which is in the expression is 15. So what should be the number of variables here? What should be the number of variables here? मेरी आवाज क्लियरली जा रही है? 4, sir. Okay. So here the maximum number is 15. So we will have 4 variables. So number of boxes will be 2 to the power 4, that is 16. As we have 4 variables, so we have number of boxes in K map will be equal to 2 to the power 4, that is 16. Okay, so let us draw a K map with 16 boxes. Okay, here it is. Now what we have to do, we have to fill up the K map. So here let the variables be A, B, C, D. So let us take AB here and CD here. Okay, now
from the given expression which is given over here. So from this expression, what we can do, firstly we have to fill the box. That is we have to put the numberings here. So here we will start with 0. So where 1 should be there? As we have taken the variables as A, B, C, D. So here D is LSB and A is MSB. So जहां पर D होगा, at that side there will be one will be there. Okay, so 0, 1, 2, 3. We'll have a 4, 5, 6, 7. Then 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. Okay. Now we have to fill this K-map. So based upon these number of boxes, जो भी expression में main terms available हैं, that we will fill using the expression. Okay. So we have the combination. Okay, 7, 9, 10, 11. 7. Okay, green color is not visible properly. 7, then 9, that is 9, 9, 10, 11, 13, 14, and 15. 13, 14, 15. Okay. और कोई छूट रहा है? Okay, so और कोई नहीं छूट रहा. So here we will have these at these places we have 1, and at sigma D's, D stands for, here D stands for don't care. Okay, so don't care positions are 1, 3, and 5. 1, 3, and 5. These are the don't care positions. Okay, so what is mean by don't care? So as we have in the last class, we have seen a problem where हमने क्या किया, वहां पर हमने कॉम्बिनेशन बनाया था. ठीक है, हमने कॉम्बिनेशन बनाया था वंस का, और मैंने कहा था कि हम कॉम्बिनेशन जो बनाएंगे दैट विल बी द लार्जेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन. ओके, जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो लार्जेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर जो लार्जेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, सो डोंट केयर का यहाँ पर काम क्या है कि अगर डोंट केयर का इस्तेमाल करके बड़ा कॉम्बिनेशन बन रहा है तो हम बड़ा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, अदरवाइज हम उसे छोड़ देंगे. इज इट ओके? सो लेट देयर इज डोंट केयर पोजीशन एट 6 आल्सो. लेट मी टेक दैट डोंट केयर पोजीशन एट 6 also. So here I will put a don't care at 6 also. Okay, now can anybody tell me that which combination we can take first? Sir, 1, 3, 5, 7, 13, 15, 9, 11. 1, 3, 5, 7, 13, No. 15, 9, 11. Okay, so let us take that combination. So one combination, one biggest combination is this one. So what I have told that if using D don't care, we are able to make the larger combination, then we will go for that. मैंने क्या कहा कि अगर D का इस्तेमाल करके, don't care का इस्तेमाल करके, don't care के स्पेसेस का इस्तेमाल करके अगर बड़ा कॉम्बिनेशन बन रहा है तो हम वो बड़ा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, अदरवाइज डोंट केयर को हम छोड़ भी सकते हैं. ठीक है, तो अब जो हमारे पास 1 बचा है वो बॉक्स नंबर 14 और बॉक्स नंबर 10 का 1 बचा है. सो हम इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ कर सकते हैं? 14 और 10 का कॉम्बिनेशन किसके साथ कर सकते हैं? 15, 11 के साथ क्वाड. 15 और 11 के साथ. ओके, सो हमने पहला जो कॉम्बिनेशन बनाया वो एक ऑक्टेट था. ओके, नाउ वी कैन मेक अ कॉम्बिनेशन लाइक दिस. ओके, लेट मी चेंज द कलर. Okay, so here we will have this second combination. Now अब जो हमारे पास बच गया कॉम्बिनेशन में नहीं आया, कौन नहीं आया? सारे वंस आ गए, डी आ गए, यहाँ पर सिर्फ एक डी ये बचा है जो कि कॉम्बिनेशन, यस, बॉक्स नंबर 6 जो है ये हमारे कॉम्बिनेशन में नहीं आया है. ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि डोंट केयर अबाउट दैट.
if D is left behind, अगर कोई एक D का बॉक्स बच गया है तो हम क्या करेंगे, don't care about that. Okay, don't care about that. Okay, sir. अगर वो लास्ट में बच जा रहा है तो हम उसे एज इट इज छोड़ देंगे, क्योंकि जब हम अपना एक सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो उसकी जरूरत उसमें नहीं पड़ेगी. नाम से ही पता चल रहा है, डोंट केयर. अगर वो अगर डी का इस्तेमाल करके बड़ा कॉम्बिनेशन बन रहा है तो हम वो बड़ा कॉम्बिनेशन बनाएंगे. अदरवाइज अगर डी किसी भी एक पर्टिकुलर बॉक्स में या दो पर्टिकुलर बॉक्स में बच जा रहा है, मान लो यहाँ पर एक डी होता, हाँ, तो हम इसे भी छोड़ देते. क्यों? क्योंकि इस डी को का कंबाइन करने के लिए कोई अब अलग से वन नहीं बचा है यहाँ पर. सो डोंट केयर अबाउट दैट. ठीक है. अब यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकालना है यहाँ से. सो वी हैव दिस क्वेश्चन, वॉट एवर इज गिवन हियर, इट इज अ वेरी लार्जर इक्वेशन और एक्सप्रेशन. नाउ वी हैव टू मिनिमाइज दिस. सो हम क्या करेंगे, लेट अस टेक द ब्लैक कलर. सो हियर we have to write the expression. So what will be the expression? So firstly we will go through. So अगर हम horizontally देखें, अगर rows के across देखें तो हमें इन चारों rows में क्या common दिख रहा है, क्योंकि मैं इस बड़े वाले combination के लिए expression लिखने जा रहा हूँ. So अगर हम इन चारों rows में देखें तो common क्या है यहाँ पर. Okay, let me write that first. So here it is 0 0, here it is 0 1, here it is 1 0, here it is 1 0, and here it is 1 1, and here we will have a 0 0, 0 1, 1 0 and 1 1. Okay, so अगर हम देखें तो इन चारों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं सर. कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि यहाँ 0 0 है, यहाँ 0 1 है, नेक्स्ट 1 1 है, नेक्स्ट 1 0 है. सो देयर विल बी नथिंग इन कॉमन among all these four rows. Now we will go for the columns. क्योंकि हमारा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इन दोनों कॉलम्स से रिलेटेड है. सो इन दोनों कॉलम्स में देखें तो हमें कॉमन क्या दिख रहा है, D1. ये D. वन कॉमन दिख रहा है. दिस वन will be represented for D. D. So here we will get D. Now the next thing, we have to get the solution or expression for this combination. A. तो हॉरिजॉन्टली पहले देखें तो हमें यहाँ से देखना होगा, इन दोनों पर्टिकुलर कॉलम से, इन दोनों रोज से देखना होगा. तो इन दोनों रोज के थ्रू जब हम देखें तो व्हाट इज कॉमन हियर, here one A. this one is common, this one is common. Okay, so and this one is represented for A. Now अब vertically हमें, क्योंकि इन दोनों columns related है combination, so here we will have what is the value we will get from these two columns. C. Okay, so this one is common, C. so it is for C. Now C. the simplified expression for the given equation will be AC plus D. Okay, so that D. now you can see here D. that we have got a very smaller expression using this K-map method. So अभी इसी expression को अगर हम Boolean algebra या Boolean laws से अगर solve करना चाहें तो it will take a lot of time. अभी मैं इसे समझा रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, तब इतना समय लगा है. अगर मैं इसे बिना कुछ आपसे पूछे और बिना कुछ क्वेश्चन करे अगर मैं करता तो within 20 to 30 seconds I can draw this particular thing. Okay, so it is a very Sir. easy way. Yes. Yes, sir. सर जैसे कि ये आपने 4 कॉम्बिनेशन बनाया, तो सर अगर सिर्फ 14 और जो 10 है सिर्फ ये दो भी कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या? Okay, let us take that. ये तो प्रैक्टिस वाली बात है, आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपको समझ में आएगा. So let us take this as the combination. Okay, I am taking this as a combination. So if I am taking this as a combination, then please tell me that what is the simplified version. Okay, so from these two rows what you will get in common? A. A. Okay, so you will get a A. Now tell me what is the common in this column. C. C.
So C D bar. here we have a column, और इन्हीं दोनों कॉलम से ये हमारा कॉम्बिनेशन रिलेटेड है। तो इस कॉलम में हमें क्या कॉमन दिख रहा है इस पर्टिकुलर एक ही कॉलम में? ये जो 10 है, ये जो 10 है, नहीं है कॉमन। कॉमन क्या नहीं है? ये तो हमारा 10 है ना इस पर्टिकुलर कॉलम में। इस पर्टिकुलर Yes, कॉलम sir. में ये जो CD का वैल्यू है, इस सारे बॉक्स के लिए ये CD का यही वैल्यू है। इसका मतलब है कि दोनों बॉक्स के लिए CD बार CD कॉमन आएगा। कॉमन है। ओके, कॉमन रहेगा। तो CD बार यानी कि CD बार इन चारों के चारों बॉक्सेस के लिए कॉमन पार्ट है। AB का वैल्यू भले ही अलग अलग है, लेकिन CD का जो वैल्यू है वो 10 ही होगा इन दोनों बॉक्सेस के लिए। बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 6, बॉक्स नंबर 14 एंड बॉक्स नंबर 10। इज इट ओके? यस सर। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो कि जब हम इन दो बॉक्सेस को का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो हमें आउटपुट में कितने वेरिएबल्स मिल रहे हैं? 3 वेरिएबल्स। लेकिन जब हमने 4 का कॉम्बिनेशन बनाया है तो हमें क्या मिल रहा है? 2 वेरिएबल। सिर्फ 2 वेरिएबल मिल रहे हैं। तो आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। सर अगर कम वेरिएबल जिसमें मिले वही करना है, यही ना? ओके यस। सो मैंने क्या कहा कि हम क्या लेंगे? लार्जेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेंगे। लार्जेस्ट पॉसिबल, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो 8 का कॉम्बिनेशन है वहां से जो सॉल्यूशन निकला उसमें सिर्फ एक वेरिएबल है। अगर 4 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वहां से नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो निकलता है वो 2 ही वेरिएबल मिलता है, और 2 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हमें 3 वेरिएबल मिलेगा, है ना? तो हमें करना क्या है कि इक्वेशन को जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करके छोटा से छोटा बनाना है, और जितना ही छोटा हम बनाएंगे उतना ही नंबर ऑफ इनपुट्स हमारे पास कम होगा और उतने नंबर ऑफ टर्म्स कम होंगे। सो दैट इज आवर मोटो। हमारा मोटो यही है कि किस तरीके से हम सर्किट को छोटा से छोटा बनाएं, और मिनिमाइज सर्किट बनाएंगे तो कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज्ड वे में आएगा। सो दैट इज व्हाई वी आर मेकिंग द लार्जेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ओके सर सर अगर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो सर डी लिखेंगे। कुछ भी कॉमन नहीं आएगा मतलब? सर जैसे चारों जो रो है उसमें तो सर कुछ कॉमन नहीं था। कौन सा चारों रो? सर ए बी के साइड वाला सर जो 4 रो है। ओके, ये चारों। हाँ सर। तो यहां से तो हमने कुछ नहीं लिखा। हाँ सर, 8 का कॉम्बिनेशन जब बनाए तो डी लिखे सर। 8 का कॉम्बिनेशन बनाया तब डी लिखे हैं, ये पूछ रहे हो? हाँ सर। जी सर। ओके, तो ये तो मैंने कहा कि यहाँ पर डी क्यों लिखे हैं, क्योंकि जब यहां से देख रहे हैं वर्टिकली, डी किधर है? डी किधर है? डी ऊपर साइड में है ना, सी और डी। तो हम सी डी को हम यहाँ से देखेंगे। जब इन दोनों कॉलम्स के थ्रू जब देखेंगे तो इन दोनों कॉलम में इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? डी। जी सर। ये 1 कॉमन दिख रहा है, इसलिए हमने डी लिखा है। और ये जब चारों का हम इन चारों को जब हम ले रहे हैं यहाँ पर, ओके, तो यहाँ से क्या कुछ कॉमन है? यहाँ पर ए बी का वैल्यू 0 0 है, यहाँ ए बी का वैल्यू 0 1 है, यहाँ ए बी का वैल्यू 1 1 है, यहाँ ए बी का वैल्यू 1 0 है ना? तो यानी कि इन जी चारों सर। में, चूंकि हमारा जो कॉम्बिनेशन बना है इन चारों रोज से मिलकर बना है, तो इन चारों रो में कॉमन कुछ नहीं है, सभी में अलग अलग वैल्यूज है। अगर हम सिर्फ 2, मान लें यहाँ एक 1 होता तो हम ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेते, तब हम यहाँ जब वर्टिकली देखेंगे तो यहाँ से हमें सी बार डी बार मिलेगा, और जब हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से और यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है? ए बार। ए मिलेगा सर। ए ए बार। बार। ये 0 कॉमन है दोनों ए में, बार। सो ए बार मिलेगा। ठीक है, इज इट क्लियर कि यहाँ पर डी क्यों आया? क्योंकि यही सिर्फ कॉमन था और कुछ कॉमन था ही नहीं। यस सर। ठीक है, तो जब भी हम के मैप बनाएंगे तो के मैप में जो लार्जेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा हम शुरुआत वहीं से करेंगे। ठीक है, नाउ इसमें एक चीज और हमें जानना है, प्राइम इम्प्लीकेंट एंड एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। ओके, सो
प्राइम इम्प्लीकेंट क्या है? जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं ऑल ऑफ देम आर प्राइम इम्प्लीकेंट्स। ओके, क्या कहा मैंने कि के मैप में जितने भी कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं ऑल आर प्राइम इम्प्लीकेंट्स। इज इट ओके? Yes, sir. But now what is essential prime implicants? So essential prime implicants are those prime implicants. Essential prime implicants are also prime implicants, but there is a slight difference that essential prime implicants are those prime implicants in which at least one min term will have included only in one combination. Okay, मैंने क्या कहा कि प्राइम इम्प्लीकेंट, पहले क्या कहा मैंने कि प्राइम इम्प्लीकेंट क्या है? जितने भी कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं ऑल आर प्राइम इम्प्लीकेंट्स। बट एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कौन है? कि जैसे हमने एक कॉम्बिनेशन, ओके, लेट अस नंबर द कॉम्बिनेशन। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन 1, दिस इज द कॉम्बिनेशन नंबर 2। ओके, लेट अस अज्यूम दैट it is a combination number 3. Let me change the color so that it will be visible more clearly. So it is the combination number 1. Okay, here it is the combination number 2, and here it is the combination number 3, this one. Okay, और okay, हम यहाँ पर एक combination और ले लेते हैं, यहाँ पर ये 4. So यहाँ पर जो 4 combination हम बनाए हैं, from these 4 combinations हम क्या देख पा रहे हैं कि जो पहला कॉम्बिनेशन है उसमें क्या है कि बॉक्स नंबर 9, बॉक्स नंबर 13, बॉक्स नंबर 7, ओके, दीज आर इंक्लूडेड ओनली इन वन ग्रुप। ये क्लियर है? बॉक्स नंबर 14 और 15, बॉक्स नंबर 14 और 15 दो ग्रुप्स में आ रहा है। ग्रुप नंबर 1 में भी आ रहा है, ग्रुप नंबर 2 में भी आ रहा है। ओके, बट बॉक्स नंबर 1 में जो बॉक्स नंबर्स हैं 7, 13 और 9, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं। इसका मतलब मैंने क्या कहा कि एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कौन से इम्प्लीकेंट्स हैं? एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स आर दोज प्राइम इम्प्लीकेंट्स जिसमें कम से कम एक ऐसा मिन टर्म हो, एक ऐसा बॉक्स हो जो कि किसी और ग्रुप में नहीं हो, केवल और केवल सिर्फ एक ही ग्रुप में हो। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब है बॉक्स डोंट केयर इसमें इसका कुछ काम नहीं है। नहीं, हम डोंट केयर को भी नहीं ले रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी वी हैव नंबर ऑफ मिन टर्म्स इन द बॉक्स। ओके, यस तो सर, अगर 1 नहीं रहता तब लेते ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 1, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि डोंट केयर को जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो उसमें कोई भी 1 नहीं होगा, क्योंकि डोंट केयर को हम 1 के साथ ही कंबाइन करके ग्रुप बनाते हैं। डोंट केयर का अलग से कभी ग्रुप नहीं बनाते, बिकॉज डोंट केयर अबाउट दैट। अगर वो छूट जाता है तो छूट जाए, डोंट केयर अबाउट दैट। तो यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन नंबर 1 है, ये कॉम्बिनेशन नंबर 1 क्या हो गया? एक एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हो गया। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्यों हो गया? क्योंकि इसमें कुछ बॉक्सेस हैं जो कि सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन में आए हैं, दूसरे कॉम्बिनेशन में नहीं आए हैं। ठीक है, अब मैं पूछूं कि क्या कॉम्बिनेशन नंबर 2 प्राइम एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है या नहीं? No, sir. फॉर दिस पर्टिकुलर 14 यस, हो सकता है सर। 14 और 15 जो है वो सिर्फ एक में ही आया है। नहीं, मैंने इस कॉम्बिनेशन को, वो 3 में भी आया है। मैं ये 3 वाला कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ कि ये कॉम्बिनेशन 3 भी है अगर हमारे पास, तो ये जो पर्टिकुलर फिर नहीं है। यस, इसका मतलब है 14, 15, 10 और 11 ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप नंबर 2 में सारे के सारे 1 आ जा रहे हैं। इसमें ऐसा कोई भी एक 1 नहीं है, कोई भी एक ऐसा बॉक्स नहीं है जो कि सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन में आया हो। ठीक है, सो दिस इज यानी कि ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3 दोनों ही एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है। ठीक है, ग्रुप नंबर 4 की बात करें, ग्रुप नंबर 4 की बात करें, सो ग्रुप नंबर 4 वेदर इट इज एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट और नॉट? Yes, sir. Essential prime Yes, sir. implement. यानी कि ये जो ग्रुप नंबर, ये ग्रुपिंग 4 जो हमने किया है, ये ग्रुपिंग 4 इज एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। क्यों? क्योंकि इसका दोनों का दोनों जो मिन टर्म्स है ये दोनों ही
सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन में आए हैं, सो इट इज एन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। तो गेट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको कॉम्बिनेशन दिया होगा और आपको पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स एंड एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। सर यस सर ग्रुप 3 को थोड़ा और बड़ा करके, मतलब कि ऊपर वाले रो को लेकर के मतलब बिगेस्ट पॉसिबल वो बना सकते थे ना कॉम्बिनेशन। जैसे बताएं बॉक्स सर नंबर। डोंट केयर और 7 और 6 को मिला के बिगेस्ट पॉसिबल वो बन जाता कॉम्बिनेशन। आप पूरा बताएं कॉम्बिनेशन 7 6। सर 3 है ना, 3 वाला जो बना है, मतलब कि 15 14 11 और 10 है ना, यस उसको ऊपर करके 7 6 मिला करके बिगेस्ट पॉसिबल नहीं, कॉम्बिनेशन ही हम बन जाएगा। कॉम्बिनेशन बना सकते हैं 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 6 का कॉम्बिनेशन नहीं अच्छा। बना सकते हैं। सर ये जो फोर्थ कॉम्बिनेशन बनाया है उसके जगह क्वाड नहीं बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, बना सकते हैं, बना सकते हैं। मैंने जस्ट एक आर्बिट्ररी, मैं एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट और प्राइम इम्प्लीकेंट समझाने के लिए मैंने जस्ट ये किया है। ये तो एक बड़ा कॉम्बिनेशन यहाँ बन सकता है 4 का, है ना। सर सर जो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है उसका स्पेशल नाम नहीं है क्या? सर जो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है उसको मैंने स्पेशल नाम नहीं है, जो नहीं है प्राइम इम्प्लीकेंट। तो दैट इज नोन एज प्राइम इम्प्लीकेंट। जो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है वो प्राइम इम्प्लीकेंट है। सर हम लोग खुद से सर डोंट केयर ऐड करके सर खुद से बिग नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है डोंट केयर, तो आप खुद से ऐड नहीं कर सकते हैं डोंट केयर पोजीशंस। तो जैसे हमने खुद से कॉलम नंबर 2 पे अलग से एडिशनली ऐड करके डोंट केयर हम नहीं ऑक्टेविटी बना आप खुद सकते से हैं डोंट केयर का प्लेसेस डिसाइड नहीं कर सकते हैं। दैट इज गिवन गिवन बाय क्वेश्चन। हाँ ओके सर। तुमने यही पूछा ना कि क्या हम बड़ा कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कहीं पर डी लगा सकते हैं या नहीं। यस सर एडिशनली हम लोग क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं नहीं, कि आप कोई भी खुद से ऐड कॉलम नहीं में कर बड़ा सकते ऑक्टेट हैं। बनाने के लिए। आप खुद से ऐड नहीं कर सकते हैं। देयर आर केसेस वेयर यू विल ऐड, ओके but if in the question it is not given, then you cannot add it by yourself. ओके सर। Okay, so ओके सर। यहाँ पर से कंक्लूजन क्या निकलता है कि all essential prime implicants are prime implicants, but all prime implicants are not essential prime implicants. Are you getting it? Yes, sir. यस सर। सारे एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स प्राइम इम्प्लीकेंट्स होंगे, बट सारे प्राइम इम्प्लीकेंट्स एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हम प्राइम इम्प्लीकेंट से ही निकालते हैं। ठीक है, ओके सर। Yes, sir. सो लेट अस मूव फर्दर। तो बहुत सारे केसेस हैं, बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट वी कैन टेक डोंट केयर। सो योगेश ने भी पूछा था शायद, या किसने पूछा था कि डोंट केयर हम खुद से ऐड कर सकते हैं नहीं या नहीं। सो आप लोगों को याद होगा कि जब हमने कन्वर्शन किया था BCD टू बाइनरी लाइक दैट और BCD टू डेसिमल समथिंग लाइक दैट, तो वहां पर क्योंकि BCD हम क्या करते हैं, BCD जो होता है वो 0 से लेकर सिर्फ 9 तक होता है। तो 0 0 0 0 0 0 0 1 देन 0 1 0 1 0। ओके, सो हम इसे बाद में भी देख सकते हैं। 1 1 0 0 1 1 0 0। तो ये कहाँ तक चला गया? वी हैव अ 0 0 1 1 1 1 देन 0। We have 1 2 3 4 5 6 7 8 then 9. Okay, so 0 then 1, we will have 0 1 2 3 4 5 6 7 8, then we have 9. Okay, so BCD में क्या है? This is the BCD. तो यहाँ पर BCD में हमारे पास सिर्फ इतने ही सारे कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं। ठीक है, लेकिन हमें अगर कुछ और नंबर बनाना हो, लाइक कन्वर्टर्स जब हम बनाते हैं
तो वहां पर इस पर्टिकुलर प्लेस पर यहाँ के बाद और पॉसिबिलिटी नहीं होती है। अगर हम डेसिमल टू बीसीडी बना रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 10 11 12 13 14 15 यहाँ तक के लिए क्या होगा, ये सारे डोंट केयर पोजीशंस होंगे। तो डोंट केयर को हम डी से भी दिखाते हैं और डोंट केयर को हम क्रॉस मार्क से भी दिखाते हैं, क्योंकि बीसीडी में ये पॉसिबल नहीं है। ओके, आर यू गेटिंग दैट? सो इस पर्टिकुलर केस में इन सारे पोजीशंस पर हम डोंट केयर रखते हैं और इसको हम के मैप में फिल करके कन्वर्शन करते हैं। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस I want to go through we have 2 more classes, that is today and okay 4 minutes. So combinational circuits. So we have 2 types of circuits, combinational circuits and Sequential circuits. sequential circuits. So what are these? We have to go through this. What are these? So combinational circuits और sequential circuits में एक basic difference क्या है? Combinational circuits जो होते हैं वहां पर उसका अगर block diagram हम draw करें simply, so we have some input and we have some output. Okay, here we have input and here we have output. This is the case of combinational circuits. And in sequential circuits, what we will have? We have some input, we have some output, and there is a feedback. Okay, this is sequential circuits and this is combinational circuits. So I think all of you can differentiate between these two, that in combinational circuits, the present output is dependent upon the present input only, isn't it? In combinational circuits, the present output is dependent upon the present input only. Okay, but in case of sequential circuits, the present output is dependent upon present input as well as past output. क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो कि यहां से फीडबैक आया है। ओके, यहां से एक फीडबैक आया है। सो आउटपुट से इनपुट में एक फीडबैक आया है। तो फर्स्ट टाइमिंग या फर्स्ट टी स्टेट में बोले, अगर T1 में आउटपुट कुछ A है तो T2 पर जब आउटपुट आएगा तो नाउ इन इनपुट्स के अलावा यहाँ पर इनपुट में एक A भी होगा। अब टाइम T2 पे T1 पे आउटपुट A है, A के साथ साथ जो आउटपुट आया हुआ है वो, और T2 टाइम पर क्या होगा कि अब जो आउटपुट आएगा दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द पास्ट आउटपुट। जो पहले आउटपुट आ चुका है अब T2 टाइम पे क्या होगा, वो डिपेंडेंट होगा पहले वाले प्रीवियस आउटपुट के ऊपर। ओके, सो यहां से हमें दिख रहा है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स आर सिंपलर एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स आर व्हाट, somewhat complex in comparison with the combinational circuits. Next, the next difference is combinational circuits take lesser time to give the output, but sequential circuits will take larger time or greater time in comparison with the combinational circuits. Okay, so we will have a 1 more minute. Please rejoin again as the session is getting over. एग्जांपल बता दीजिएगा ना दोनों का। Yes. ओके सर। मतलब एग्जांपल क्या होगा कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल का? Yes, yes. Okay, please rejoin again. ओके सर।